podcast. Here we discuss books and topics that relate to this world and the next. We bring in a perspective of a group of friends who are trying to learn and spread the teachings to the common people. The views and opinions expressed in this episode are our own. In this episode, we discuss the book Forty Hadith by Imam Khomeini. Let's dive right in. सेकंड हदीस जो है ऑस्टेंटेशन रिया के ऊपर है, तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और काफ़ी नुकसानदेह डिजीज़ है. Riya basically means to falsely make oneself appear to be virtuous, good-natured or a true believer in God before the people for the sake of earning their respect and admiration or with the purpose of gaining good reputation among them. तो इसमें एक हदीस जो रिलेटेड है वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रिया in any of its form amounts to shirk. Verily one who works for the people, his reward lies with them, and one who works for God, his reward lies with God. तो मतलब knowing that shirk is basically the highest forms of injustices and the highest गुनाह, तो क्योंकि ये रिया बेसिकली शिर्क की तरफ इंसान को ले जाता है, तो वेरी डेंजरस क्या कहते हैं डिजीज ऑफ द हार्ट. तो इसमें यह है कि the hypocrite that performs the riya feigns integrity, righteousness, virtue, honesty and piety without an authentic intention of acquiring these traits for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Like the other क्या कहते हैं हदीसेस, इसमें आगा खुमैनी ने बड़ा ज़बरदस्त इसकी ग्रेड्स बताई हैं और डिग्रीज बताई हैं, स्टेजेस बताई हैं, ताकि इसको और डेप्थ में एनालाइज किया जा सके. तो जो रिया की पहली जो स्टेज है उसके 2 स्टेप्स हैं. जो पहला स्टेप जो है, it talks about an individual makes a display of his religious belief and shows off his knowledge of the religious teachings in order to project himself as an honest person in the eyes of the people to gain their confidence and respect. Such a kind of person tries to make a display of his trust in God and his power, saying that he does not believe in any being except him. I think overall ये जो stage है, क्या कहते हैं, it kind of focuses on how a person is, like, even if a person has acquired knowledge but he is simply using that knowledge to gain the respect of other people rather than having the true intention of sort of sharing that light with the people for the sake of the illumination of their hearts and of course his own heart. So it's basically, it can really lead to an inverse curve जिसमें इंसान के जितने भी सवाब हैं वो गुनाह में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे इस चैप्टर के आखिर में मतलब खुमैनी फरमाते हैं, तो इसमें ये है कि it's also related to like self-deceit, because it talks about like such a person with his gestures and utterances poses himself to be a staunch follower of the true faith, and this is a more common form of riya than the first one. तो इसमें मैंने मतलब एक personal observation मतलब डाला था, which I mean is highly subjective, क्योंकि it's based on something that I've observed. हो सकता है मैंने उसका गलत एनालिसिस किया, लेकिन I see a lot of people in the community जैसे कि that refer to themselves as Maulais in our community. Obviously क्या कहते हैं, there are many people who use this title, and it can easily be said that all the people do not follow, like they don't fall under the same category. जिस तरह से लोग एक इंसान जो अपने आप को मुसलमान भी कहता हो, मतलब all the people cannot be clubbed together in one category. But it's kind of interesting to see कि I guess a deeper question is, why have the people decided to dub themselves as such? क्योंकि जब कुरान और इस्लाम खुदा ने लोगों को ऑलरेडी मतलब कुछ कैटेगरीज बताई हुई हैं
جیسے کہ اماموں نے بھی فرمایا ہے کہ بھائی ایون شیعہ اگر انسان اپنے آپ کو شیعہ بلائے تو اٹ مائٹ ناٹ بی ایکوریٹ. انسان کہے کہ میں ایک محب ہوں کہ کہتے ہیں رسولوں کے اہل بیت کا, آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی اے شیعہ, بیکاز اس میں مطلب جسٹ reaching the level of a Shia is so hard. matlab why would someone actually create a specific term? matlab maybe they believe that they are following Maula ke kehte hain, but then of course matlab it you know it all goes with like, so they decided to shower themselves with the title and profess to love the Holy Prophet and his Ahl Bayt, whilst only God knows what's in their heart. I mean, God is the ultimate judge. यहाँ पे थोड़ा सा मतलब interesting fact था कि नबी दानियल थे. Dan means he who judges and El means God. So the name Daniel actually means God is my judge, which is kind of interesting. Second step isme aata hai, the path of the Riya is represented by those who eradicate false belief from their hearts and through such purification want to attain power and respect amongst people. So, I mean, as we go further down the road on this journey of Riya, it seems like a rather profound and matlab deeply rooted kind of disease, kyunki like anything else matlab deenul islam mein intention ka itna bada role hai. to isme ye hai ki agar ek insan for example apne nafs ko purify bhi kar raha hai, but maybe the reason as to why he's purifying the nafs is if it is any reason besides, like I think what Agha Khomeini's core message in this chapter is any action which is done for anyone besides God is like it's a fruitless action. It's a form of riya, and thereby it will not gain the person any fruits. It will not avail him. Rather, actually, it will not only not avail him, not do him any good. It will result in like sin. So basically, जितना बड़ा पहाड़ इंसान के कहते हैं in his or her perceived कि कहते हैं वो पहाड़ बना रहा है अच्छे अमाल का, उतना ही बड़ा उसका क्या कहते हैं like trench होगा क्या कहते हैं गुनाहों का, which is like so dangerous. But because of course like purifying the nafs and purifying the soul is not an easy thing. But एक तो इंसान इतनी मेहनत करे ये काम करने के लिए, और फिर अगर उसकी नीयत में कहीं पे भी ये बात आ जाए कि वो लोगों की आंखों में मतलब बुलंदी पाएगा, तो like all those efforts are like wasted immediately. So it's like super important to be conscious of this thing of riya. And as Qasim was saying basically that like Khomeini has rather interestingly arranged all these hadiths in like a specific order, the first being jihad al-nafs. So on the journey of jihad al-nafs, like probably one of the first things to really be aware of is like this riya, because it can like come into the hearts of people, like it can slip in basically in especially people who are on the path of the religion, right? Because बिल्कुल it's a slippery slope. Like people tend to think they're self-righteous. ये बहुत एक early pitfall होता है कि लोग अपने आप को self-righteous समझना शुरू हो जाते हैं. बिल्कुल, and it's like one of the easiest traps which Iblis uses, because a person has decided to walk on the path towards God. A person has decided, I'm going to purify my soul, and once he has made all the preparations and he's ready to put in all the hard work, फिर कहीं ना कहीं उसे दिल में वसवसा हो जाए या ख्याल आ जाए कि like he would gain like इज्जत in the hearts of people. Like maybe एक ख्याल ये भी आ सकता है कि मतलब दीन में तो अच्छे अमाल हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में दुनिया में भी उसका मकाम ऊंचा हो जाएगा, and that itself can like really nullify all the efforts. So it's like a super dangerous form of disease. Stage 2 is like kind of builds upon the stage 1, that an individual demonstrates his piety and virtuous deeds and pretends to have done away with like the antithesis of piety and virtue, and behaves in such a manner as if he is free from all vices. And once again, the aim of all of this is to win the confidence of others. So repeatedly, Khomeini is actually pointing out how the thought can come within a person to do these things for the sake of gaining
other people's confidence. Stage 3 again, this kind of riya is considered as overt. So in this step is marked by an individual's performance of the prescribed forms of piety, prayers, good deeds in front of other people with the intention of demonstrating his good qualities and praiseworthy habits, or by his posture as a person who strictly adheres to the religious commands on purely rational grounds, and thus wishing to win the hearts of the people and attracting their attention towards himself. Such acts, whether performed in total or in part with the motive of riya to please others, are discussed in the book of fiqh. Step 2 is 1 abstains from evil deeds for the purposes of riya only. So again, matlab good deeds and noble deeds, matlab abstaining from evil, purification of soul. But if it gets like polluted by riya, it can all go down the drain. Then he talks about riya and faith or creed, because faith being, so he kind of like divides it into riya and faith. ایک کوشچن پوچھوں before you move on. ضرور. اس کے اندر جو یہ 3 سٹیجز انہوں نے بتائی ہیں تو اٹس ناٹ ایویڈنٹ کہ ان 3 سٹیجز میں ڈسٹنکشن کیا ہے. like were you able to pin down ke what's the distinction between them? They seem very similar. He said that last stage, which is the third stage, he said that it is more overt, so it's very hidden. اور اس کی جو third stage کا جو second step ہے اس کے اندر ہے کہ one abstains from evil deeds for the purpose of riya only. سو جیسے پہلی 2 اسٹیجز کے اندر تو لوگ اچھے ایکٹ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, رائٹ, ٹو گین دیئر کانفیڈینس اینڈ ٹو گین ریسپیکٹ. لیکن جو تھرڈ اسٹیج ہے وہ اگر ایون لیٹس سے کہ فار ایگزامپل کوئی بندہ کوئی گناہ نہیں کر رہا, رائٹ, اور وہ صرف اس نیت سے وہ گناہ نہیں کر رہا کہ یار دوسرے یہ پرسیو کر لیں گے میں بہت ہی کوئی یعنی پائس انسان ہوں. So even that is a form of riya, like even right, definitely is a form of riya. matlab usme agar I guess isme matlab aapki baat bilkul sahi hai. These are like very closely related. isme jo sabse zyada inhone grades aur degrees mein jo distinction kiya hai wo is cheez mein kiya hai. like there's one which is called riya in faith, to dusra riya in actions hai basically. to ek iman mein hai which is like batini, and one is riya in actions which is zahiri. اب باطنی میں وہی ہے کہ انسان اگر گناہوں سے بھی مطلب دور رہ رہا ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر رہا ہے, لیکن اس کی اس ایفرٹس میں مطلب کہیں نہ کہیں اپنی پرسنل میں کی تھاٹ آ جائے, تو پھر وہ قربتاً اللہ اس میں سورٹ آف, اگر مطلب ایون یہاں تک آ جائے کہ قربتاً اللہ بھی ہے لیکن میں بھی ہے ساتھ میں, تو لائک ایون دیٹ از لائک ناٹ ایکسیپٹیبل. لائک اونلی لائک جس طرح سے توحید خدا کی ایک ہے, ویسے لائک دا انٹینشن بیہائنڈ لائک اینی ڈیڈ, لائک دی اونلی acceptable factor is like قربتاً اللہ, like and nothing else. So یہ ہے اس میں موسٹلی میں نے تو یہی ڈسٹنکشن آبزرو کیا ان کی جو چیپٹر تھا. اٹ واز موسٹلی ان لائک riya of faith and riya of action, but yeah یہ stages کافی similar ہیں. السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ جی وعلیکم السلام. سوری میں نے لیٹ جوائن کیا ہے, بہت شکریہ. اچھا ٹاپک ہے. مجھے صرف ایک چیز ایکسپلین کر دیں, ریا کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن کیا ہے؟ ریا مطلب ہم اردو میں تو یوز کرتے ہیں دکھاوا جیسے, جی ریا کو یہاں پر دکھاوے کے ہی سینس میں ریا کو یہاں پہ انہوں نے بیسکلی ڈیفائن کیا ہے کہ اگر ایک انسان اس نیت سے اچھے کام کر رہا ہے کہ وہ اس کے دل میں خیال ہے اپنی میں کا, لائک اٹس ناٹ جسٹ لائک شوئنگ آف. یہاں پہ مطلب انہوں نے کافی مطلب آئی گیس ڈیٹیل میں یہ بتایا کہ اگر ایک انسان صحیح پاتھ پہ جانا چاہ رہا ہے, یا تو اپنے ایمان کے اس میں جو کہ باطنی ہے, یا ظاہری اعمال کے حساب سے, اگر اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ ساری چیزیں قربتاً اللہ کے علاوہ کسی بھی اور پرپس کے لیے کر رہا ہے, تو پھر وہ ریا کے اندر آ جاتا ہے. اور اس لیے ریا جو ہے وہ ایک راستہ ہے شرک کی طرف. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا. زبردست, تھینک یو.
नो वरीज करना। तो इसमें इन्होंने अभी हम लोगों ने हम लोग शुरू में ही ज़्यादा हमने प्रोग्रेस नहीं किया है। इसमें हम लोगों ने बात की थी ग्रेड्स एंड डिक्रीज ऑफ रिया। तो ये जो इनिशियल मैंने सेकंड स्टेज पे ज्वाइन कर लिया था, बट आई लेट यू गाइस मूव ऑन, आप करें। सही। तो अब हम आते हैं ईमान के अंदर रिया और creed which मैंने थोड़ा बहुत इसमें देखा, इट्स मोर लाइक द मॉरल लॉ और मॉरल कोड, मतलब जो कि हमारे लिए जो शरिया है बेसिकली। तो इसमें है कि इसमें वो मतलब बड़ा ज़बरदस्त वो ओपनिंग स्टेटमेंट आगा खुमैनी यूज़ करते हैं कि रिमेंबर दैट हिपोक्रेसी इन रिलीजियस फेथ इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ हिपोक्रेसी। जिस तरह से शिर्क जो है वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जुल्म और इनजस्टिस है, उसी तरह से जो ये रिया जो है और ये हिपोक्रेसी जो कि मतलब दीन के मामले में आती है, इज द वर्स्ट काइंड ऑफ हिपोक्रेसी। और subsequently its retribution is also the severest, and the bad effects are far greater than and more dangerous than other forms of hypocrisy. So the one who is guilty of this sin, if he does not believe genuinely in the ideas which he pretends to believe in, is counted amongst the munafiqeen, and his place is in the fire, and he is doomed to eternal damnation, and his punishment is the severest of punishments. तो उसमें फिर वही आगा खुमैनी एम्फसाइज करते हैं कि अगर इंसान कोई भी अपने ईमान में किसी भी चीज़ में वो सिर्फ इसलिए बिलीव करता है कि वो लोगों के दिलों में इज्जत हासिल करना चाहता है या लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहता है, तो that basically will lead to the darkness of infidelity and faithlessness, and faithlessness will occupy the domain of his heart. So basically in the first instance this person commits shirk of the covert type. So while his religious beliefs and acts should purely be meant for God and his holy essence, he is guilty of committing the sin of doing them for the sake of others and making them to share what should absolutely belong to him. तो once again आगा खुमैनी इस बात को मतलब एम्फसाइज करते हैं कि क़ुर्बतन इल्लल्लाह के साथ किसी भी और चीज़ को, नीयत के अंदर किसी भी और थॉट्स को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो कोई भी थॉट अगर क़ुर्बतन इल्लल्लाह के साथ ऐड होती है तो वो दैट्स इक्विवेलेंट टू ascribing partners to God, and therefore मतलब leads to shirk. In this way a person makes partners with God and has given permission to the devil to occupy his heart as if it does not belong to God. और इस चैप्टर के आखिर में आगा खुमैनी बड़ा ज़बरदस्त वो बताते हैं कि जो इंसान का दिल है, that itself is the domain of God, and God has ownership of the heart, of a person's heart. So a person does not even have like ownership of their own hearts, but अगर वो मतलब खुदा की commandments को transgress करते हैं, then they basically invite the devil to occupy their heart. It has been mentioned earlier that faith emerges from the depths of the heart, and in this matter mere abstract knowledge does not suffice. तो इसमें आगे जाके आगा खुमैनी एक्सप्लेन करते हैं कि there is like a difference between knowledge and ईमान। तो ये उन्होंने थोड़ा उसकी ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट यहाँ पे डाला हुआ है। तो पॉज करेंगे। जी एक चीज़ जो मैंने पहले भी कहीं पढ़ी थी, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ पढ़ी, लेकिन आई थिंक जो आपने बात करी ना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ उस बात को, शायद ये वही बात है ज़रूर कि इंसान कोई नेकी भी करता है ना, और अगर जैसे आपने आई थिंक वो बात पहले कर चुके हैं, लेकिन वही दोबारा मैं पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि अगर जैसे आप अपने घर वालों के लिए फ़र्ज़ करें खिदमत कर रहे हैं कोई, और उसमें असल में आपका मकसद ये है कि वो चीज़ आपको सुकून देती है, आपकी नीयत बनती है कि आप अपनी खातिर कर रहे हैं जी। वो जो है ना, वो भी एक तरह से मतलब उसको किस तरह से कैटेगराइज करेंगे, शिर्क कहेंगे नहीं कहेंगे वो अलग बात है मेरे ख्याल से, और अफा शायद कह भी दें उस चीज़ को, लेकिन असल जो चीज़ जो मैंने पढ़ी वो यही थी कि हर चीज़ जो है ना मतलब क़ुर्बतन लिल्लाह, मतलब ये काम भी जो आपने अपने घर वालों के लिए भी करना है जी, जैसे आपने मोहब्बत भी करनी है यार, अपने माँ बाप की खिदमत भी करनी है, जी, उसकी नीयत ये हो कि मतलब ये खुदा की खातिर कर रहा हूँ मैं, ना कि इसलिए कि ये चीज़ मुझे सुकून देती है, मैं उस इंसान से बहुत करीब हूँ इसलिए मुझे वो करके सुकून मिलता है और मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि खुदा उसमें से एब्सेंट हो गया है और वो चीज़ सही नहीं है। तो ये चीज़ें चलें मतलब ये समझ में आती है, लेकिन आगे जाके मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि क्या इसके अंदर अयतुल्लाह ख़ुमैनी ने कोई इस पर बात की है कि मतलब इस चीज़ का हल क्या है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इंसान अपनी मोहब्बत को हटा तो नहीं सकता, लेकिन
और ऐसे काम जो खासकर इंसान अपनी मोहब्बत के लिए करता है उसमें हमेशा खुदा का ख्याल करना ये आसान काम नहीं है। मतलब सोचने वाली बात है ना, अगर आप अपने माँ बाप से कोई एहसान करने लगे हैं उनके ऊपर या फर्ज कर उनकी खिदमत करने लगे, आपको सिर्फ खुदा का ख्याल नहीं आएगा ज़्यादा, आपको ज़्यादा ख्याल आएगा अपनी मोहब्बत का और अपने वालिदैन का डायरेक्टली। तो सवाल ये है कि मतलब नहीं क्या आगा ने आगे कोई की बात की है, क्या किया है, क्योंकि काम आसान नहीं है। बेशक अल्लाह की कहते हैं ये आगा ने इसमें आगे जाकर के उन्होंने एक सॉल्यूशन पेश किया है लोगों के लिए कि वो उस सॉल्यूशन के थ्रू इस रिया से बच सकते हैं। और आई थिंक उस सॉल्यूशन पे हम लोग आगे जाके इसमें आएंगे, लेकिन उसका जस्ट ये है कि मतलब इंसान की जो सोच है वो अपनी सोच में मतलब गॉड कॉन्शियसनेस को पैदा कर दे। फॉर एग्जांपल कि अगर और इसमें ये है कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि भाई अगर कोई इंसान जैसे नमाज पढ़ रहा हो तो फॉर एग्जांपल वो उसके दिल में कि कहते हैं या जहन में अलग अलग ख्याल आ सकते हैं। तो अगर वो अपने जहन में कुछ पिक्चराइज करना चाह रहा हो तो मे बी अगर वो काबा को पिक्चराइज करे तो उसमें यह है कि इट बिकम्स ए एंकर फॉर दैट पर्सनस माइंड। तो उसमें ये होगा कि उसका जहन इधर उधर भटकेगा नहीं। तो उस तरह से जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर इंसान रिसालतुल हुकूक में जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं द राइट्स ऑफ द फादर एंड द राइट्स ऑफ द मदर, तो उसमें अगर इंसान उन राइट्स को पढ़ करके मतलब अपने दिल में ये एक बार वो पढ़ भी ले वो राइट्स, तो फिर उसके जहन में ये आइडिया आ जाए कि मैं आई एम इंडेटेड टू माई पेरेंट्स बिकॉज गॉड हैज मेड इट सो। एंड तो फिर इंसान ये कहे कि मतलब आई एम serving my parents, you're doing service towards them, and I'm humbling myself before my parents because it is the commandment of my Lord. तो फिर उसमें ये होगा कि उसकी जो भी इंसान अच्छा काम करता है, और आगा खुमैनी इसमें बड़ा खूबसूरती से फरमाते हैं कि जो इंसान खुदा को जब फॉलो करता है और सही तरह से कुर्बतन इल्लल्लाह काम करता है तो बेशक उसके दिल में एक सुकून पैदा होता है और एक ट्रैंक्विलिटी पैदा होती है उसके दिल में। तो वो एक रिजल्ट है और एक रहमत है जो खुदा की तरफ से। इट्स लाइक मतलब कि इंसान मतलब ठंडे पानी में अपना हाथ डाले उसको एक ठंड और एक सुकून महसूस होती है। तो वो तो एक जैसे कोई ठंडी हवा आ रही हो तो वो इट्स अ रिजल्ट। लेकिन इंसान हमेशा ये सोचे कि मैं ये कर रहा हूँ खुदा के वास्ते, और इवन ये मोहब्बत जो मेरे दिल में है वो भी एक्चुअली जो मोहब्बत मेरे दिल में है मेरे पेरेंट्स के लिए, वो भी मैं कोई नई काम नहीं कर रहा बल्कि दैट इन इटसेल्फ इज अ मर्सी फ्रॉम गॉड। क्योंकि इसमें आगा खुमैनी फरमाते हैं कि जो इंसान इस जर्नी पे भी आगे बढ़ता है खुदा के लिए तो वो बेसिकली इसीलिए बढ़ पाता है क्योंकि खुदा ने उसके जहन में या उसके अंदर इंस्पायर की ये सारी चीज़ें। जिस तरह से फेमस वाक़या है नबी अय्यूब का कि जब उन्होंने अलग अलग चीज़ें खोनी शुरू की तो उन्होंने कहा द वन हु गेव मी हैज़ टेकन दोज़ थिंग्स अवे। तो मतलब इंसान को अगर कुव्वत ना होती, जैसे वो पढ़ता है बिहुलिल्लाहि व क़ुव्वतिही यक़ूमु व यक़ऊद, अगर उसको कुव्वत ना होती तो वो नमाज भी नहीं पढ़ पाता। तो इंसान जब भी कोई नेक काम करे तो वो हमेशा ये सोचे कि ये करने की जो इंस्पिरेशन थी या और जो प्रैक्टिकली करने के लिए जो कुव्वत थी वो मेरे रब ने मुझे दी है। तो it's through my Lord's mercy that I'm able to do what I'm doing. तो I think ये आगा खुमैनी का मतलब सॉल्यूशन है इसमें एक इसमें और गॉड कॉन्शियसनेस। एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जब भाई जैसा आपका क्वेश्चन ये था ना कि जैसे इंसान कई चीज़ें करता है जो सीमिंगली अच्छी चीज़ें हैं, राइट, थिंग्स दैट यू डू फॉर योर लव्ड वंस लेट्स से, तो वो क्या रिया की कैटेगरी में आ सकती हैं अगर आप वो प्योरली कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से की गई या नहीं? करेक्ट, यही सवाल था ना आपका? मैं शायद नहीं रिया तो उसको ना कहूँ, क्योंकि रिया इंसान मतलब नहीं उसमें नीयत तो इंसान की खालिस ही होती है ना। फर्ज करो अपने वालिदैन के लिए कुछ करने लगे लेकिन उसमें खुदा एब्सेंट होता है अक्सर। मतलब यानी फर्ज करो मैं अपने हाँ एग्जैक्टली। हाँ तो इसके अंदर जो है ना वो एंड में इन्होंने एक इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की हदीस पेश की है, उसका खुलासा ये है कि अगर कोई इंसान कुछ एक्ट करता है एंड इट इज़ परफॉर्म्ड एज अ गुड डीड एंड इट इज़ आल्सो मे बी सीन बाय अदर्स एंड इट मेड द पर्सन हैप्पी, क्योंकि ये रिया जो है ना इट्स लाइक अ कॉज एंड इफेक्ट काइंड ऑफ थिंग, राइट? तो रिया की जो प्योर डेफिनेशन वो ये है कि मैं कुछ कर रहा हूँ इस नियत से कि this is not for the pleasure of Allah, this is actually to gain like respect and confidence of other people. So that is like a cause and effect relationship. तो अगर वो cause and effect relationship कायम नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि वो रिया नहीं है, it's like a normal good act, right? तो ऐसा नहीं है कि भाई आप मतलब कोई भी चीज़ करें तो वो it has to be like purely day to day flow में हो नहीं पाता, right? इस तरह से
तो इसमें ये सही हदीस है, मैं उसको वो भेजता हूँ आपको चैट में, आप उसको पढ़ लें, तो आई थिंक दैट माइट ठीक आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। सही हाँ नहीं एग्जैक्टली रिया ना भी हो लेकिन बहरहाल वो जो पॉइंट थोड़ा सा सिनर्जी थी ना उसके अंदर ये मतलब हर चीज़ खुदा की ज़ात के लिए और खुदा की मतलब कुर्बत के लिए होनी चाहिए, आपका अच्छा अमल भी वो आई थिंक थोड़ा सा जैसे किबला बता रहे हैं कि गॉड कॉन्शियस होना पड़ेगा हर चीज़ के अंदर। बिल्कुल क़िबला, और इसके लिए हमें एंकर्स ढूंढने पड़ेंगे अलग अलग किस्म के ना, जिसके ज़रिए हम गॉड कॉन्शियस हो सकें। तो जैसे ये जो राइट्स हमारे ऊपर मतलब हमारे वालिदैन की हैं, या जैसे खुदा की राइट्स हैं मतलब वो रिसालतुल हुकूक में, ये सारी चीज़ें एंकर्स बन सकती हैं ताकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन एंकर्स का इस्तेमाल करते हुए गॉड कॉन्शियस हो सकें और फिर अपने हर अमल में खुदा को याद कर सकें। सही तो सही चलें किबला जज़ाकल्लाह, सॉरी मैंने डिरेल कर दिया डिस्कशन थोड़ा, अब नहीं आगे नहीं अपने क़िबला, बिल्कुल ये इसमें इसी से रिलेटेड जैसे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गॉड ऑलमाइटी सेज आई एम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वन हु मेक्स अदर्स माय पार्टनर्स इन एनी मैटर, हिज डीड्स आर नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, आई एक्सेप्ट ओनली दोज एक्ट्स दैट आर प्योरली डन फॉर माय सेक। तो ये मतलब एक काफ़ी मतलब वैसा स्टेटमेंट है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई भी अगर थॉट मतलब उसके अंदर आ जाए तो वो बेसिकली पल्यूट कर देती है, मतलब वो इखलास और सिंसियरिटी जो है उसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल काम है कि इंसान एक पूरी सिंसियरिटी के साथ सिर्फ क़ुर्बतन इल्लल्लाह के उससे नियत से कोई भी अच्छा अमल करे। तो इसकी समरी बेसिकली ये है कि इट इज़ क्लियर दैट इफ एनी स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ द हार्ट आर परफॉर्म्ड with sincerity of heart, they will, if they are not performed with sincerity of heart, they will neither be the object of attention of the Almighty, nor will He acknowledge them, and they will be credited in the accounts of the partner of that partner in the person for whose sake those were performed. The spiritual acts performed for the sake of somebody else, not for God, will surpass the limits of polytheism and will enter the domain of kufr. तो आई गेस ये अच्छी खासी थ्योरी थी, तो मैंने सोचा मतलब इस थ्योरी के साथ मतलब इस फ्रेम ऑफ थॉट में मतलब अगर एक सवाल मतलब मेरे जहन में आया था, तो मैंने कहा कि भाइयों के साथ पॉन्डर किया जाए। तो पहला सवाल ये है कि मतलब इज वर्शिप ओनली फॉर द सेक ऑफ गॉड? तो फिर उसमें ये है कि लाइक कैन इट बी फॉर द सेक ऑफ समवन एल्स बिसाइड्स गॉड, लाइक फॉर एग्जांपल अ प्रॉफिट और इमाम? और फिर जैसे है कि मतलब is zanjeer done for the sake of God, you know, like if you look at any action, matlab who's the first question is whose sake is it being done for? Like, are we doing it for the sake of making ourselves feel better, or are we doing it for the sake of God? So if it is done purely for the sake of God, if it's not done purely for the sake of God, then whose sake is it done for? I mean, I guess the answer could be different for different people. मतलब ये कह रहा था कि it boils down to the need of the individual. तो अगर तो वो इंसान ये सोच रहा है कि मैं जंजीर करूंगा ताकि मैं वीडियो बनवाऊं और वो YouTube पे जाए, and then all the people in my community know that I am like a very बड़ी छुरियों से मातम किया था। हाँ, बड़ी छुरियों से मातम किया था। तो so ये डेफिनेटली फिर रिया के अंदर आ जाती है। बट if his opinions and internal motives are very different, then if he's like really मतलब thinking of God, getting closer to God because of all the actions that he would be doing as a result of his zanjeer, then it's probably fine. सही, मतलब इसमें मतलब जैसे वो आता है ना कि फॉर एग्जांपल एक बार खुदा ने हज़रत मूसा से पूछा कि भाई तुमने मेरे लिए क्या किया? तो उन्होंने कहा मैंने नमाज पढ़ी या इबादत की। तो उन्होंने कहा ये तो तुमने अपने लिए किया। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या करूं आपके लिए? तो उन्होंने कहा कि तुम भूखों को खाना खिलाओ और जिनके पास नहीं है कपड़े उनको वो, मतलब बेसिकली सर्विस ऑफ फेलो बनी आदम इज इक्विवेलेंट टू सर्विस टू गॉड। तो खैर, लेकिन आई गेस ये टेंजेंट पे चला जाएगा टॉपिक, मतलब इट वाज जस्ट लाइक समथिंग टू पॉन्डर अबाउट, क्योंकि लाइक जंजीर में इंसान जैसे फॉर एग्जांपल वो अपने लिए कुछ कर रहा है, इट्स नॉट लाइक सर्विस, इट कैन नॉट बी लाइक
classified as service to humanity. तो अच्छा, दूसरा अगर वो मतलब लोगों को इमाम के बारे में, अगर इमाम, if he wants to make a person like conscious of the imam's क्या कहते हैं sacrifice, then the question, I guess the follow up question is कि जो लोग जंजीर को देखते हैं इंडिया में या पाकिस्तान में या यहाँ पे, like is that the message जो उनके जहन मतलब दिल में उतरता है उसको देख करके कि they are actually reminded about the struggle of the imam against the injustice, or या कोई और मैसेज उतरता है? कि मैं चूज नहीं, मुझे लगता है होगा इस तरह के मामलात में ना क्वेश्चन इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है इंसान की क्या है, मुझे लगता है कि इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसके कुछ लेयर्स हैं सब। असल में जो आप कोर पे जो सवाल उठता है ना, जैसे आपने कहा कि हज़रत मूसा से कहा कि आपने मेरे लिए क्या किया, तो सवाल है खुदा चाहता है क्या? एग्जैक्टली, है ना, खुदा क्या चाहता है, मतलब वो कर लें जो खुदा चाहता है। अब खुदा अगर चाहता है कि इमाम हुसैन याद रहें या इमाम हुसैन को याद रखा जाए, क्यों चाहता है? सही, खुदा क्यों चाहता है इमाम हुसैन को याद रखा जाए? सवाल तो ये है ना कि सवाल कि मतलब इमाम हुसैन को क्यों याद रखा जाए, क्योंकि इमाम ने दीन की नुसरत की, उसके लिए अपने आप को मतलब कटवा भी दिया, उनको दीन का दर्द भी था, खुदा के अहकाम का दर्द भी था, इसलिए इमाम को याद रखा जाए, यानी इमाम के मकसद को याद रखा जाए। अब एक इसके अंदर एंगल ये है कि क्या इमाम का मकसद खुद को और लोगों को याद दिलाने के लिए जंजीर का कितना अमल है? ठीक है ना, जंजीर हेल्प कर रही नहीं कर रही? वाकई में मुझे हेल्प कर रही है क्या कि दीन में करप्शन हो गई, तो मेरी जो मतलब इमाम से मोहब्बत इजहार तो है, लेकिन मुझे लगता है इमाम हुसैन एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव जो है वो ये कि इमाम के मकसद के करीब कितना लेके जा रही है जंजीर आपको। हाँ, फिर दूसरा सवाल ये कि इमाम को याद करने का तरीका, जैसे मासूम ने बताया है कि भाई जैसे मजलिस पढ़ी जाती है, खुतबा दिया जाता है, इमाम के स्ट्रगल्स के बारे में लोगों को बताया जाता है, जो जिसने जुल्म किया उसकी मारिफत लोगों के अंदर पैदा की जाती है। किसी भी मासूम ने ये तरीका नहीं दिखाया, मतलब ये इमामों को याद रखने का या खुदा के पैगाम को याद कर रखने का। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स समथिंग व्हिच इज लाइक इन्वेंटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग, इट्स नॉट like it's not a form of ibadat that has been prescribed by God, by his prophets or the imams. So then the question is it actually achieving? चलो ये मिसाल ले ली है हमने इसकी जंजीर की, लेकिन आई थिंक जो कोर क्वेश्चन है और जो डिस्कशन का निकला था, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं गया था कुछ साल पहले अरबईन पे, वो वॉक करने की तौफीक थी, तो गरबी साहब जो थे वो साथ में थे, तो चलते चलते जो थे वो उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि मौलाना इसकी जो है हम लोग जब सब सही कर रहे हैं, मशी जो हो रही है, इसकी नियत क्या होनी चाहिए? तो उन्होंने उस वक्त जो था वो यही कहा था कि जिस तरह हर चीज का हर अमल जो होता है वो कुर्बतन इल्लल्लाह होता है, इसकी भी कुर्बतन इल्लल्लाह ही है। तो वो जो हम जो डिस्कस कर रहे थे, वो हर अमल जो है चाहे कुछ भी हो जाए वो होगा कुर्बतन इल्लल्लाह ही। तो बेशक अगर वो अब ये इसके अंदर अगर हम ये, क्योंकि ये देखो अलग अलग चीजें आती रहती है ना, मशीक के अंदर भी कौन सा किसी ने कहा था कि भाई एक वाला काम भी करो, तो अगर हम वो देख रहे हैं कि भाई जो चीजें मौजूद नहीं है बिल्कुल कोर के अंदर, लेकिन ये कि वो इंसान को करीब ला सकती है अल्लाह से, अगर वो 3 दिन वो वॉक करने के साथ अगर उस माहौल के अंदर जो है, और वो वहां पर जरी के पास इमाम के पहुंचने के बाद इंसान कहता है कि अब मेरे अंदर वो नूर पैदा हो गया, जिस तरह हम लोग बात तौफीक की भी कर रहे थे, जो अल्लाह दे रहे थे। तो ये इनके तवस्सुत से, इनके वसीले से जो है वो एक सबील मुहैया की जाती है कि इंसान के अंदर जो है वो कुर्ब हासिल करने का एक बहाना हो जाए। तो अब ये मिसाल जो है इसके ऊपर है कि अगर हम डाइवर्ट हो गए इसके ऊपर फोकस करने लगेंगे स्पेसिफिकली, ये एक अमल जो है जो कि आई थिंक मेरे ख्याल से वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि वो कहीं जाएगा नहीं। आई थिंक वो कोर जो है वो वही है कि हर अमल जो है उसके अंदर कोशिश ये की जाए कुर्बतन इल्लल्लाह। और जैसे जो तुमने सेकेंडली सवाल जो किया था, और जैसे हम लोग ये भी कहते हैं मजालिस के अंदर के बखुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदर सारात, तब अगर चलो हमने कह दिया खुशनुदी इमाम ज़माना हो गया, तो क्या इसके अंदर क्या कुर्ब इलाही शामिल है या नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए जिस तरह से कि कहते हैं, और उस बात में कहने के अंदर भी कोई गलती नहीं है। अगर इमाम की खुशी जो होगी वो भी, क्योंकि अगर हम यही कहते हैं ना कि वो फना हो गए, उनका जो मकसद था, उनकी जो हयात थी वो खालिस थी, कि इससे खालिस कुछ और मिलेगा नहीं। हम तो ये कहते हैं पेनिकल है, तब उस पेनिकल के अंदर
अगर उसकी जो है वो पिनकल की खुशनुदी भी जो है अगर आपने हासिल कर ली तो वो भी कुर्ब है, लेकिन उसके अंदर भी अगर वो कुर्ब नहीं है शामिल खुदा का तो फिर वो एक हो सकता है क्वेश्चनेबल है हो क्या आ जाए। आई थिंक तो वो ये मेरे ख्याल में अगेन एज विद लाइक अ लॉट ऑफ थिंग मुझे ये लगता है कि बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता है कि आदमी भटक भी जाता है यू नो कि भाई ये इस तरह हो सकता है भाई नमाज के अंदर भी, या फिर आप किसी और माहौल के अंदर चले गए, इंसान है वो खिसकने का उसका वो होता है, लेकिन जैसे ही मेरे अंदर से आवाज़ भी आ जाती है कि ये रिया में ना तब्दील हो जाए, तो वो जब आए आवाज़ हो तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में अमल किया जाए। सही बात है खुबला की कहते हैं। आई गेस लाइक इन लाइट ऑफ दिस चैप्टर इसमें यही है कि बेसिकली अगर इंसान अपने नबी इमाम वालदैन के खुशी के लिए कुछ कर रहा हो और उसमें थॉट ये ना हो कि सेल्फ ग्लोरिफिकेशन उसमें अगर थॉट ना हो, और अगर इंसान वो अमाल इसलिए कर रहा है क्योंकि चाहे नबी हो, इमाम हो, वालदैन हो, इनकी राइट्स हमारे ऊपर, इनकी राइट्स हैं जो खुदा ने हमारे ऊपर अपॉइंट की हैं और हम उन राइट्स को पूरा कर रहे हैं, क्या कहते हैं, तो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं खुदा की कुर्बत पाने के लिए, तो ये एक नेक अमल है ऑब्वियसली। और अगर हम कहीं पे मतलब सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का एस्पेक्ट आ जाए, चाहे वालदैन की सर्विस हो, चाहे अपने बच्चों या ज़ौजा की सर्विस हो या जो भी हो, तो फिर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन बेसिकली जो है उससे अब्सटेन करने के लिए इससे कहा गया है। तो फिर आगा खुमैनी जो है वो मतलब बड़ा एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस बताते हैं नॉलेज और बिलीफ के बीच में। तो वो कहते हैं कि जस्ट हैविंग नॉलेज ऑफ गॉड इज नॉट इनफ, या हैविंग नॉलेज ऑफ जो भी लॉजिकल चीज़ें हैं, चाहे वो यूनिटी ऑफ गॉड हो या खुदा के एट्रीब्यूट्स हो, नॉलेज ऑफ एंजल होली स्क्रिप्चर्स हो, यौमुद्दीन की नॉलेज हो, ये नॉलेज होना सिर्फ काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा है कि मतलब द डेविल पोजेस्ड द नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स मोर देन आई और यू or any other individual, but still he is an unbeliever। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है आगा का। तो नॉलेज जो है वो ईमान के उसमें नहीं लाता, हम ईमान के अंदर हमें नहीं लेके आता। तो वो कहते हैं कि जो ईमान है it's a yearning of the heart and an inner experience which if not genuine does not become faith। तो once again यहाँ पे sincerity और इखलास की बहुत ज़्यादा importance है। वो फरमाते हैं कि anyone who has gained knowledge of the religion through rational demonstrations of argument, के कहते हैं जिसके ऊपर sort of हुज्जत तमाम भी कर दी जाए, लेकिन वो अपने आप को खुदा के सामने सरेंडर ना करे अपने विल को, तो then he cannot become a perfect मोमिन। so जिस तरह से क़िबला ज़िया फरमा रहे थे कि मतलब ये अच्छे नेक काम करने से इंसान को obviously you feel tranquility and peace of mind, as long as वो मतलब जो peace of mind और tranquility है, it's a result of obedience to God। When the light of मतलब faith is stabilized, it brings with it tranquility of the heart, and this is something which does not issue from true knowledge। So only when a person surrenders his will to the Almighty can he be a benefactor of this tranquility, and just like knowledge simply cannot lead him to this peace। तो I think इसमें दो चीजें मैंने भी पढ़ा है चैप्टर। जी लाइक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है अगर आप दो चीजों के ऊपर टच कर दें, अगर आपने समरी बनाई है। एक तो ये है कि अयतुल खमैनी ने एन एडवाइस फॉर गेटिंग रिड ऑफ द कर्स ऑफ रिया किया है, एक सेक्शन है उसके अंदर। सो मे बी वी कैन लाइक क्विकली कवर दैट। सो आई थिंक यू हैड इट अप, अगर आप थोड़ा सा बिल्कुल ये हाँ ये क्योंकि ज़िया भाई ने भी इस पे सवाल किया था, राइट? ये कवर कर लेते हैं और एंड में ना कंक्लूजन के अंदर एक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है which is almost like a diagnostic test for everyone के do we have Riya in us or not। I don't know if you captured that hadith or not। उसमें there are 3 distinguishing features of one accustomed to Riya। तो वो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या हैं? अगर ये दो चीजें कवर हो जाए तो आई थिंक जस्ट कवर हो जाएगी चैप्टर की। जी क़िबला के कहते हैं इसमें पहुंचते हैं। आई थिंक तो इसमें देखा जाए अगर हम लोग इसके सोल्यूशन पे जाएं तो आगा खुद फरमाते हैं कि this advice is expected to work effectively for curing the disease of the heart, yours as well as others। It shall be in accordance to it conforms with the traditions of the Masumin।
इसमें ये है कि God Almighty, by means of His all-embracing power and might, which governs the whole universe and is immanent in the realms of all His possible being, takes under His control the hearts of His servants, as no one is outside the range of His power and the domain of His domination. तो फिर उसमें वो बताते हैं कि the fact is revealed implicitly and explicitly in the Quran as well as in the traditions of the Ahl Bayt of the Holy Prophet. That God Almighty is the real owner of the hearts and the sovereign over them. And you, a helpless and weak creature of Him, you cannot claim to be the master of your own heart without His leave. तो उसमें यह है कि वो कहते हैं कि it is possible that your act produces a result just contrary to your wish. So pay attention to what we have seen and heard about the double-faced hypocrites whose hearts were not true. They were ultimately condemned to be disgraced. Whatever they intended, they could not achieve, but something that they did not desire happened to them. तो इससे एक मतलब रिलेटेड वाक़या है जो आई थिंक कुरान की तफसीर में बयान करते हैं कि जो अब्राहा जो था उसने काबे के ऊपर अटैक इसलिए किया था क्योंकि उसने कहा था कि यहाँ काबे में बुत होते हैं और मैं चाहता हूँ कि लोग काबे का तवाफ ना करें बल्कि उस चर्च में आए जो मैंने एक खुदा के लिए बनाया है यमन में. तो लेकिन एक्चुअली ही वाज जेलस ऑफ द पीपल जो लोग मतलब वहाँ पे आते थे काबे में मक्का में आते थे. वो चाहता था कि वो मक्के की जगह उसका यमन जो है वो हब बन जाए. तो बेसिकली बिकॉज उसकी नीयत साफ नहीं थी तो जो रिजल्ट था उसकी क्या कहते हैं जंग का it was like contrary to his wish. मतलब उसके हाथ ही मतलब तबाह हो गया वो अबापील की उससे. और इसमें इमाम फरमाते हैं कि a companion asked him about the words of the Almighty, whoever is desirous of meeting his creator, he should perform virtuous deeds and should not ascribe any partner to God in his worship, seeking an explanation. The Imam ﷺ replied, a person who performs good deeds but not for the sake of being blessed with the vision of his God. His acts are aimed at being considered as pious by the people, and he wishes that the people should know about his deeds. Such a person is counted amongst the polytheists who has ascribed partners to God. The Imam continued, there is none in the world who would conceal his good deeds, and after passage of time, God has not revealed them. And there is none in this world who could conceal his wicked deeds forever, for they were exposed by God before he passed away from the world. तो आई गेस ये मतलब उसका सल्यूशन इमाम की हदीस में है कि इंसान जो है वो अगर ये चाहता भी है कि लोगों के अंदर उसके लिए इज्जत पैदा हो या वो चाहता है कि लोग उससे मोहब्बत करें. आखिर हर इंसान यही चाहता है कि मतलब वो प्यास मतलब मोहब्बत और इज्जत का भूखा होता है हर इंसान. तो उसमें अगर वो खुद डायरेक्टली इस चीज़ के लिए वर्क ना करे बल्कि वो हर चीज़ खुदा के वास्ते करे तो खुदा उस इंसान की मोहब्बत दूसरों के दिल में डाल देते हैं. वो इस चैप्टर में आगे भी मतलब लिखा हुआ है कि वो that's like a natural result of a person's sincerity towards God. जबकि इसके नीचे ही bullets में कि try to win the hearts of the creatures by first pleasing the real owner of the heart. By the real owner of the hearts. मतलब exactly वही कह रहे हैं कि मतलब you would actually gain like वो कहते हैं कि खुदा एक्चुअली जो इंसान सिंसियर होता है खुदा उस इंसान की मोहब्बत दूसरे लोगों के दिल में ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर देते हैं. सो बेसिकली इट्स एक्चुअली अ मोर लाइक एफिशिएंट मतलब वे ऑफ एक्चुअली गोइंग थ्रू द लाइफ इन अ इजी वे रादर देन मतलब प्लीजिंग पीपल व्हिच एक्चुअली रिजल्ट्स इन लाइक actions. The results are actually contrary to what a person imagines, right? A person imagines that like people will think good of him, but actually when a person is like showing off or it can be seen by other people as well because you know people aren't blind, and then it actually results in their humiliation and their disgrace. So the results are actually contrary to the people's wish. So the best thing to do is to be worthy in the eyes of God. Try to win the hearts of the creatures by first pleasing the real owner of the hearts. Purify your inner self so that the actions will also be pure and untainted by the love of the world or hatred of fellow beings. ये काफी interesting statement मुझे लगा था because it says like purify your heart so your actions will also be pure and untainted by the love of the world or the hatred of fellow beings.
your spirit should be pure and untainted, and all the infirmities and corruptions of the soul should be eliminated. मतलब इसमें वो आगा सवाल उठाते हैं कि मतलब what advantage is love or hate of the weak creatures of God and gaining favor and name among them, even if it has some benefit, it's insignificant and short-lived. क्योंकि मतलब obviously लोग हैं जो मतलब लोगों के interpersonal मामलात होते हैं और कुछ लोग किसी के साथ जुल्म करते हैं या कुछ करते हैं, but वो कहते हैं कि मतलब one has to rise above the love of the world and hatred of like the people, fellow human beings, and move towards the path of God. और फिर यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग ये वर्ड है क़ब्ल काज़िम ने इस हफ्ते शेयर किया था मेरे साथ, सिज्जीनी। इसमें है कि मतलब जो इंसान रियाकारी के रास्ते पे जाता है, मतलब that person receives the severest of like punishments and is converted into a person of like who abides in like the sijjin, which is like the lowest dungeon of hell, which is I guess as extreme as a punishment could be. It occurs in the traditional tradition from Al-Kafi from Imam Jafar as-Sadiq alayhi salam that the Prophet has said, indeed, when the angel of God takes to the higher heavens the good deeds of man, as he carries the good deeds heavens towards the heavens, God orders him to place those deeds in Sijjin, since they were not performed for him alone. So that's I guess the thing कि इंसान के जितने भी efforts होते हैं, उसकी कोशिश होती है purification की तरफ, वो उसके सारे जो mountain of like अच्छे अमाल हैं, जो इंसान जिसके ऊपर अपनी उम्मीदें रखता है, मतलब कि आखिरत में डे ऑफ जजमेंट के दिन वो उसके काम आएंगे, वहाँ पे पता चलता है कि वो सारे मतलब सिज्जीन में पहुंच गए कि कहते हैं बहुत ही डेंजरस चीज है ये। अच्छा, एज अ प्रैक्टिकल पर्सन लाइक अगर मैं ये डायग्नोज करना चाहूँ कि भाई मेरे अंदर रिया है या नहीं, so I think there was that advice right towards the end. I think there's a hadith from Imam Sadiq alayhi salam. तो इसके अंदर ये कि इमाम सादिक अलैहि सलाम on authority of Imam Amir al-Mu'minin said that there are three distinguishing features of one accustomed to Riya. One, he expresses joy and cheerfulness when he is greeted by people. Two, he becomes cheerless and sullen when alone. And three, he wishes to be praised for everything he does. So, I see. I think he's kind of pointing towards like a narcissistic type of a person. Yes. And I think like हम सबने देखे इस तरह के लोग, लेकिन like in some shape or form, unfortunately, at least like मैं अक्सर ये होता है कि right मैं तो at least ये feel करता हूँ कभी कभार के जब you know I feel joy and like cheerfulness when especially कभी कभार ये होता है कि जैसे अगर इंसान congregation में जाके कोई इबादत करे तो you tend to feel a little bit more energetic than if you were to do it alone. And interestingly, like this was also like cited as one of the diagnostic factors of Riya. कि भाई अगर आपसे अकेले में इबादत में आपको मज़ा नहीं आ रहा और आप मतलब congregation में जाके ज़्यादा energetic feel कर रहे हैं, so this is this could be like one of the indicating factors. And obviously this is case by case, but just to like question myself, this is like ये बड़ी एक खतरनाक चीज़ है. So I'm better off like diagnosing myself to have Riya than to say I don't have it. बिल्कुल, आई थिंक मतलब यही इस चैप्टर का एम आई गेस आगा खुमैनी का ये कि हमें हम सब भाइयों को आई गेस सारी इंसानियत को कॉन्शियस होना चाहिए इस रिया के बारे में और अपने आप को लाइक डायग्नोज करना चाहिए हर वक्त. और अगर कोई भी पोल्यूटिंग थॉट हमारे जहन में आ रही है कि कहते हैं तो उसको निकालना चाहिए, क्योंकि जैसे वो फरमाते हैं कि आई गेस वी डू नॉट रियलाइज दैट दिस फॉल्टी outlook turns the effects of our deeds upside down and drags us into the sijjin, making our actions worthless. तो एक तो इंसान मेहनत भी करे और फिर आखिर में उसको कुछ मिले भी ना, तो that's like epic loss indeed. तो yes, I think we should all strive to मतलब gauge our actions और मतलब उसमें इखलास और sincerity पैदा करने की कोशिश करें. और आई गेस इसको एंड किया जाए इस बात पे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इवन रिसालतुल हुकूक में जब मतलब वो अब्बा और अम्मा के हुकूक बताते हैं तो वो कहते हैं कि
कि कोई भी इंसान अपने अब्बा अम्मा की खिदमत वो उस लेवल तक कर नहीं सकता जितना उसकी ड्यूटी है, unless he is showered by the grace of God. तो उसमें वही है कि इंसान आई थिंक अपनी अगर ज़िंदगी में अच्छे काम भी करना चाह रहा है तो उसमें he needs to make his heart a vessel to receive the grace of God. वरना वो इंसान वो अच्छे काम कर भी नहीं सकता in the first place. So yeah.